We are very confident that the Congress party will win in Karnataka, but they are showing, I think this time again they may fail. The people of this country want a change and change for India and India. एग्जिट पोल ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा। उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन। ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। In a press conference, Congress snubbed the exit poll results for Lok Sabha elections 2024, calling them Modi poll, fake and a psychological game to put down the morale of workers. Along with Jairam Ramesh, key state leaders, PCC presidents and CLP leaders were present too. And this is what they said. Congress Karnataka President D.K. Shivakumar said that he was confident Congress will win 2/3 of the total seats in the state. I also am in a public life from past 40 years. I think I have contested 10 elections and won 8 elections continuously. And I have conducted so many elections. We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40,000-50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000, 6,000 and all. Surveys can't be done going to a village, sitting at the headquarters of the village and speaking to people. In a village, there are a lot of places where there will be colonies, there will be women, there will be all sections of the society. Every section of the society has become different. Now there are 3-4 sections. One is caste, one is candidate, one is caste. A lot of things works with the, any constituency which comes out for the polling. What they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. Actually, we planned for 141 was my earlier comment. Then I just, due to we had some 4-5 seats, we had some internal issues, so we lost 4-5, but I stick on to 136, and that was the number we are getting. Now also I am telling you, our number will be more, it will be double digit plus more. Over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka, but they are showing, I think this time again they may fail. I would like to convey to you and the party high command, my workers should not lose confidence. They might have created a lot of hangama in the whatever the EVM, that is issue that might have happened. Why so much discussion is going all over the world on this issue. But I am very confident the people of this country want a change and change for India and India. And they have voted. I have just traveled across the country, various other states also. I have visited, spoken to various leaders. All the workers are very confident. I am like to tell you, even in Dharwad, even in Bangalore, where they feel they see that it is the RSS stronghold, BJP stronghold, where they have not won. Our party cadres are telling that we are going to win Dharwad, we are going to win Dakshina Kannada. When such is the situation, I don't feel that we will lose any in Karnataka. So I would like to assure you that we have done our best, and as far as Karnataka is concerned, India and we doesn't have any alliance with any other political party, but still we have done very well, and we'll have a very, very good number so that we can contribute to the Indian bloc. Congress candidate Ajay Rai, who is contesting against Narendra Modi in Varanasi, dubbed the exit poll results as fake. जो स्थितियां बनी उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर, जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से, निश्चित, क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हम लोग हर जगह
आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ, अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और जो इन्होंने झूठ बोले और जो योगी ने बुलडोजर चलवाया उसका भी आप देखेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है जो गठबंधन हमारा इस बार हुआ, तो इससे हमारे वोट पूरी तरीके से जुड़ गए, कोई वोट बटा नहीं, और कुछ ऐसे वोट मिले हैं जो हमें 20 साल से नहीं मिले थे, वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर से जो ये दिखा रहे हैं, ये मीडिया का ये अपना इन्होंने जो बना रखा है अपनी तरीके से पूरी सिस्टम को, एग्जिट पोल, ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा दिया। 400 पार, अरे भाई आप उससे कुछ कम दिखाओ ना। ये मालूम ये जनता के बीच में जा रहा है कि 400 पार मतलब उन्हीं की बात को इन लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन, जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu said he witnessed unwavering support for Congress. फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है, और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। Maharashtra Congress President Nana Patole said they were not scared of exit polls. कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है, और मैं आपको अभी से दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं, रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को और इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमने सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया कि आखिरी की जो ये मशीन हो उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा।